गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। ओके, आप मैट्रिक्स बारे पढ़ चुके हैं ना। ठीक है जी, मैट्रिक्स तो ही डिटर्मिनेंट फाइंड होंदा है, मतलब वो तो थोड़ा ईजी होएगा, कोई चक्कर नहीं है। बट यह है कि जो तुम ध्यान समझोगे ना तो ईजी आ। बस ये है कि जिदा मैट्रिक्स की उस तरह ही डिटर्मिनेंट करना आ, बट थोड़े चेंजिस आओ आपको पता चल जाएंगे। ठीक है जी, जो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स हुंदा की आ। A matrix is an arrangement of numbers and not a number। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏ ਐਸੋਸੀਏਟ मतलब कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਰੋਜ਼ ਆ ਦੈਨ ਕਾਲਮਸ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਜਦੋਂ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰਸ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਡਿਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਨਾ 2 ਡੰਡੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਲਗਾਤੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ, ਡੈਲਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਏ, ਡੈਲਟਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, 2 4 6 8, 2 ਹੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਹੀ ਕਾਲਮ ਆ, 2 × 2 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਅਗਰ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ 3 × 3 ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ 3 ਰੋਜ਼ 3 ਕਾਲਮਸ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। 2 6 8 2 4 9 3 4 8 ਲੈ ਲਓ। 3 × 3 मतलब कि है जी 3 रोज़ 3 कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आ। ठीक है जी। हुण इत्थे लिखदा मैं कल्ला 6, ये 1 × 1 आ, मतलब की है कि एक ही रो आ दैन एक ही कॉलम आ, तो भी क्या मेरे को स्क्वायर मैट्रिक्स। हुण जिन्नियां भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुंदियां उन्हां दे अंदरले नंबर्स एसोसीएट करदे आ ना, वो सारियां अपने को की हुंदियां, डिटर्मिनेंट्स हुंदे आ। ठीक आ। हुण सपोज करो कि मेरे को मैट्रिक्स गिवन आ, फॉर एग्जाम्पल अपने को मैट्रिक्स गिवन आ ए, मैट्रिक्स कितनी आ 2 6 4 9। ठीक है जी। आ वाली मैट्रिक्स गिवन आ। हुण इहदा डिटर्मिनेंट फाइंड करना। हुण तो गल डिटर्मिनेंट की हो रही है, मैट्रिक्स आपां नूं गिवन आ। ठीक है। मैट्रिक्स आपां नूं साइन पता है कि साइड्स से इस तरह की ब्रैकेट लगती है, वो मैट्रिक्स हो जाती है। हुण इहदा की फाइंड करना आपां, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की बोलदा, जो तुसीं डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, साइड्स से की लगा देना है, 2 डंडे। जो यदि हुण आह वाली चीज़ दे आपां मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड की करना, तो आप साइड्स ते की लगा देने जी, इन्हां दे 2 डंडे, 2 6 4 9 लागे, इनू बोल देंगे डिटर्मिनेंट। साइड्स से 2 डंडे लगाने। ठीक है जी। फिर आह वाली ब्रैकेट नहीं लगानी होंगी, फिर आप 2 डंडे लगा देने। हुण एक गल होर नोट करने वाली आ, जिहड़े आप 2 डंडे लगा रहे हैं, ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਅਗਰ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ, आ मॉडुलस आ, मॉड आ, बट जिहड़ा आ साइन है ना 2 डंडे, ये डिटर्मिनेंट दे आ। ठीक है। ये मॉड दे नहीं आ, ये डिटर्मिनेंट दे आ। तो तुसी मॉड नूं डिटर्मिनेंट दे नाल कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है जी।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਬਟ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 2 ਡੰਡੇ ਲਗਾਏ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਡੂਲਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੋਡੂਲਸ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। 2 ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ 2 ਡੰਡੇ ਲਗਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ 2 ਆਰਡਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਆ ਕਿ 2 ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਆ, 2 ਵਰਟੀਕਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ 2 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, 2 ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਨੰਬਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰਸ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਡੈਲਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਫੋਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਸੋਲਵ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਚੱਕਣੇ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਨਲ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, A1 ਔਰ B2। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, A1 ਇੰਟੂ B2। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਗਨਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਜੀ ਆ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, A2 B1 ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, A2 B1। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, 2 3 1 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਨਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 2 × 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨਲ ਚੱਕਣਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, 1 ਇੰਟੂ 3 ਮਤਲਬ 1 × 3। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਇੰਟੂ 2 4 ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ 3 3। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗਏ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 1। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 1। ਦੇਖੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਡੰਡੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਡਾਇਗਨਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ 2 × 2 ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਣਦਾ, 2 ਰੋਜ਼ 2 ਕਾਲਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
इन्ना समझ आया। जो सम्स के उत्ते अप्लाई करांगे ये मैथड थोड़ा होर एक्सपैंड हो जाऊगा, थानू होर समझ आ जाऊगा। फर्स्ट हम देखो इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट गिवन आ ए प्लस आयोटा भी उस एलीमेंट किन्ने गिवन आ डिटर्मिनेंट के अंदर ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी ए माइनस आयोटा बी। आई आयोटा पता ही सब नूं +1 दे विच 5th चैप्टर किया सी कॉम्पलैक्स नंबरस। ठीक है जी, चलो हम देखते हैं कि इस डिटर्मिनेंट नूं सॉल्व आउट किस तरह करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनूं गिवन किहड़ी डिटर्मिनेंट आ ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी ए माइनस आयोटा बी गिवन है जी। हुण अपना डिटर्मिनेंट का मैथड की बोलता सीगा कि आप डायगनल के थ्रू इन्हें सॉल्व आउट करना। फर्स्ट डायगनल मेरे को आ वाला आ जाएगा, तो की हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। फिर मैथड फॉर्मूले का माइनस का साइन आ जाना। फिर अपने को नैक्सट डायगनल केड़ा आना दिस। ठीक है जी, तो की आ जाऊगा मेरे को सी प्लस आयोटा डी इंटू माइनस सी प्लस आयोटा डी। ये दोनों आपस च मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस च मल्टीप्लाई। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं हुण ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी इन्हां दोनों नूं आपस च मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है जी, जां फिर तुहाडे कोल डायरैक्ट ये फॉर्मूला बन ही रहा है किहड़ा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई कर सकते हो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला की बोलता होंदा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बट बी दे नाल अपने कोल की लगता पिया आयोटा, दैन उसकी भी स्केयरिंग आ जाएगी। एक साइड सॉल्व हो गई, एक साइड सॉल्व हो गई। ठीक है जी, हुण नैक्सट देख लो आ वाली चीज़ भी सेम आ वाली चीज़ भी सेम ही आ कि एक साइड इनू आह वाला माइनस एज इट इज़ इनू हुण देखना बंद करो। इस चीज़ देखो आपस दे विच एक च प्लस आ एक च माइनस आ, तो भी किहड़ा फॉर्मूला बनता पिया आ प्लस और माइनस, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ही। ठीक है, देखो तुसी इनू ए मान लो इनू बी मान लो ए प्लस बी। ठीक है जी, फिर आ भी थाडी की होगी ए आ भी की होगी बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वही सेम फॉर्मूला। ठीक है जी, जिहदा भी की बनना ये ए आप मन्निया होया आ आई डी नू और बी किन मन्निया होया सी नू, तो की है जाना ए स्केयरिंग माइनस बी स्केयरिंग बी मतलब सी स्केयरिंग। ठीक है, अदरवाइज तुसी दूसरी तरह करना है इकल्ले इकल्ले नू सॉल्व आउट करना है वो भी कर सकते हो। ठीक है जी, जो प्लस प्लस की टर्म या प्लस माइनस की टर्म होगी वो कैंसल हो जानी है। ठीक है जी, आ वाली चीज़ बनी। हुण आ जाओ ये ते, हुण आपां नूं की मिल रहा है आयोटा स्केयर मिल रहा है, और आयोटा स्केयर आपां नूं पता है कि कोल हुंदा आ -1 दे। आयोटा स्केयर अपन कितनी वैल्यू दिंदा है जी -1, तो इस जगह पे आप जिते जिते अपना आयोटा स्केयर आ तो माइनस लगना ही लगना आ। ठीक है जी, क्योंकि फॉर्मूले वाला आयोटा स्केयर की जगह पे की लगा देंगे आप -1 नाल की कर देंगे इंटू बी स्केयर, अगेन आ वाला माइनस आयोटा द -1 इंटू डी स्केयर माइनस सी स्केयर। ठीक है जी, तो की बन गया ए स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर माइनस -1 डी स्केयर ने किया माइनस डी स्केयर नाल फिर क्या जाना जी माइनस सी स्केयर। ठीक है जी, हुण आ वाले माइनस नूं अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, इनू एज इट इज़ लिखो ए स्केयर ब्रैकेट तो बाहर लिख दो माइनस माइनस प्लस डी स्केयर माइनस माइनस प्लस सी स्केयर। ठीक है जी, तो अरेंजमेंट कर दो इन्हां दी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर। अपने को डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया जी आ वाला। ठीक है, आप जो भी कोई वो कहते इवैल्यूएट करो, मतलब अपने को इवैल्यूएट होके आंसर इन्ना आ रहा है। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट सॉल्व आउट सैकेंड ऑर्डर सॉल्व आउट करने का तरीका की आ कि तुसीं उन्हां दे डायगनल्स के एलीमेंट्स नूं आपस दे विच मल्टीप्लाई कराउणा और सेंटर च की पाना माइनस, बट यह है कि पहलों आवली डायगनल चकनी है फिर सैकेंडरी डायगनल चकनी है, पहलों प्राइमरी चकनी है। ठीक है जी, फिर अपने को आयोटा स्केयर आ वह पता है आंसर कितना हुंदा -1 ही वही वैल्यू होंगी, पुट कर दो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है, इफ़ ए मैट्रिक्स 3 4 1 2 एलीमेंट्स ਦੇ ਨਾਲ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू ए डिटर्मीनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैट्रिक्स तो की बनाना डिटर्मीनेंट, दैन फिर आप पहलों ए डिटर्मीनेंट ए फाइंड करनी है, फिर आप 3 मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, तो देखो किस तरह सॉल्व आउट होएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन किया मेरे को मैट्रिक्स, मैट्रिक्स गिवन आ, गल हो रही है इतने डिटर्मीनेंट फाइंड करन दी, आंसर डिटर्मीनेंट चाहिए आ। तो चलो पहले इनू आप डिटर्मीनेंट बनाने लई की करांगे, साइड्स ते 2 डंडे लगा देंगे। ठीक है जी, बट हुण इन्हों बार बार डंडे नहीं बोलना, इन्हों डिटर्मीनेंट बोलना। जिथे डिटर्मीनेंट बोलता दैट मीनस अपने को साइड्स ते डंडे लगे आ। ठीक है जी, तो थानू दस्सिया है डंडे लगाने का मतलब कि इन्हों डिटर्मीनेंट बोलते हैं, तो बार बार वो गल नहीं, हुण आपां डिटर्मीनेंट यूज़ करांगे इनू। ठीक है जी, तो चलो डिटर्मीनेंट लग गया। हुण डिटर्मीनेंट सॉल्व आउट करने का तरीका की आ, प्राइमरी डायगनल चुको कितना आ 3 इंटू 2, फिर माइनस द साइन, फिर 4 नू 1 दे नाल मल्टीप्लाई करवाना है, 4 इंटू 1। आंसर कितना हो गया जी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। मतलब मेरे को ए डिटर्मीनेंट का आंसर कितना आ गया जी 2, बट उन्हें फाइंड करने मैंने कि वैल्यू कही हुई आ 3 इंटू ए डिटर्मीनेंट की। ठीक है, हुण ए तो आ गया मेरे को आंसर एदा ए डिटर्मीनेंट का, बट नालों की कह रहा है कि डिटर्मीनेंट के नाल 3 मल्टीप्लाई हो रहा। इट मीनस 3 लिखो, जो डिटर्मीनेंट का नाल आंसर लिखा उन्होंने नाल मल्टीप्लाई करवा दो। 3 इंटू 2 आंसर इज 6, तो मेरे को 3 एदा आंसर कितना आ गया जी 6। समझ लगी। देखो पहले उन्हें मैट्रिक्स दी सी, मैट्रिक्स तो आप डिटर्मीनेंट बनाया, डिटर्मीनेंट को फिर सॉल्व आउट किया, डिटर्मीनेंट को सॉल्व आउट करके मेरे को आंसर आ गया। बट उन्हें मैंने डिटर्मीनेंट के नाल 3 भी दिता से इंटू च, तो फिर इधरली साइड डिटर्मीनेंट के नाल आप 3 रखता। ठीक है जी, दैन फिर 3 रखिया, आह वाली चीज़ चक के इत्थे रखती। ठीक है जी, फिर डिटर्मीनेंट का जिन्ना आंसर आया उन्होंने नाल पुट करता, मल्टीप्लाइज से दोनों मल्टीप्लाई करते, आंसर कितना आ गया मेरे को 6। ठीक है जी, इधर एक नैक्सट होर देखते हैं। नैक्सट देखो इफ़ ए डिटर्मीनेंट सॉरी ए मैट्रिक्स गिवन आ 1 2 4 2 दैन शो दैट आ डिटर्मीनेंट 2a, ठीक है, इज इक्वल टू 4 बार आ, फिर डिटर्मीनेंट ए आ। इनू ध्यान नाल देखो, ये ए दे नाल 2 आ, फिर डिटर्मीनेंट का साइन लगा, ये 4 ऑलरेडी बार आ, दैन कला ए दे अगे डिटर्मीनेंट लगा। तो वह कहते इनू ये इक्वल प्रूव करो, शो करो कि ये इक्वल आ। ठीक है जी, मतलब प्रूव नहीं, शो करके उन्होंने दिखाना, जो आप सॉल्व आउट करना ना कि आप दिखाना कि हाँ जी डिटर्मीनेंट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मीनेंट ए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन किया मैट्रिक्स ए 1 2 4 2। हुण आप मैट्रिक्स नूं किस कन्वर्ट करना है डिटर्मीनेंट, तो चलो डिटर्मीनेंट का साइन लगा दो। जो डिटर्मीनेंट का साइन लगाता है यदा मतलब कि है आप डायगनल्स लैके सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो 1 नू 2 नाल मल्टीप्लाई करवा दो, फिर लग दो माइनस, फिर 2 नू 4 नाल मल्टीप्लाई करवा दो। कितना आंसर हो गया 1 इंटू 2 2 साइन माइनस, दैन 4 इंटू 2 8, आंसर कितना आ गया मेरे को -6। मतलब डिटर्मीनेंट ए का आंसर कितना आ गया मेरे को -6। इन्नी गल समझ लगी। फिर उन्हें देखो उन्हें डिटर्मीनेंट ए नहीं बोलिया, उन्हें 2a बोलिया आ, मतलब की है कि 2a मैट्रिक्स, फिर वो अगे डिटर्मीनेंट का साइन। तो मेरे को मैट्रिक्स तो गिवन आ। ठीक है जी, मैट्रिक्स की है ए, तो ये अगे मैं की ला दूँगी 2a, इतने 2 ला दो, ए की जगह की है 1 2 4 2। तो 2a नूं कितना सॉल्व करना है, जोड़ा 2 आ उन्होंने अंदर सारे एलीमेंट्स ना मल्टीप्लाई करवा दो, कि हो जाना 2 4 8 4। मेरे को 2a का आंसर कितना आ गया 2 4 8 4। बट हुण ए तो चलो मैट्रिक्स का आंसर आया, हुण गल सी डिटर्मीनेंट की, तो ये अगे डिटर्मीनेंट का साइन लगा दो दोनों साइड्स से। ठीक है जी, तो की बन गया 2 4 8 4। लगी समझ। हम इन्हें सॉल्व आउट कर दो डायगनल्स लैके, 4 नू 2 ने किया 8, -8 नू 4 दे नाल मल्टीप्लाई किया 32। -32 दे विचों तुसीं 8
माइनस करवा दो, आंसर इज़ -24। -24 आ गया। हुण ध्यान नाल देखो आंसर -24 आ गया, ये दोनों तो इधर कुछ बनया ही नहीं, शो होया ही नहीं आ। 2A का आंसर मेरे को -24 होया, आ चीज़ तो शो ही नहीं हुई। तो ये किस तरह होनी है, जदों तुसीं इस चीज़ नूं थोड़ा जिहा होर सिंपलीफाई करोगे। किस तरह कर सकते हो तुसीं, 4 नूं -6 दे नाल मल्टीप्लाई करवाओ, 4 × -6 आंसर इज़ -24। हुण आ वाला 4 एज इट इज़ रहता। हुण -6 देखो कि आंसर आया सी, -6 कि आया सी, डिटर्मीनेंट ए दा। तो फिर -6 की जगह तो मैं की लिख सकती हाँ, डिटर्मीनेंट ए लिख सकती हाँ। यस, हुण देखो डायरैक्ट मेरा डिटर्मीनेंट 2A किहदे इक्वल आ गया, 4 × डिटर्मीनेंट ए दे। और उन्होंने यही कहा सीगा कि 2A का डिटर्मीनेंट किहदे कोल आना चाहिए, 4 × ए डिटर्मीनेंट दे। सॉल्व आउट करके आया, समझ लगी। बस ये है कि थोड़ा जिहा स्टैप ते ध्यान रखना है कि किस तरह करना है। पहलों मेरे को मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स नूं आपां डिटर्मीनेंट बनाउणा, फिर उन्हें की क्या आया, उन्हें 2A इकट्ठा बोलिया आया। ये नहीं आ कि 2 बाहर आ डिटर्मीनेंट फिर आ, नो, उन्हें की बोलिया कि डिटर्मीनेंट के अंदर ये 2A है। तो पहलों मैं फिर 2 नूं मैट्रिक्स के नाल सॉल्व आउट किया, फिर वो अगे डिटर्मीनेंट का साइन लगाता। ठीक है जी, आ कॉमा नहीं है, सॉल्व आउट करके दस्सिया होया। ठीक है जी, फिर जो 2A के अगे फिर आप डिटर्मीनेंट का साइन लगाया आया, दैन उन्होंने आप सॉल्व आउट किया। सॉल्व आउट करने तो बाद थोड़ा सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई के 4 एज इट इज़ रहन, तो जो -6 सी वो डिटर्मीनेंट का आंसर से, तो डिटर्मीनेंट पुट करता और आप उन्होंने शो करवाती है चीज़। ठीक है जी, लगी समझ। नेक्स्ट, व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटर्मीनेंट इक्वल। उन्होंने की बोलिया, ओके, उन्होंने की बोलिया जी, व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x की पॉजिटिव वैल्यू केड़ी होएगी। ठीक है जी, किन्हां दे विचों बनूगी पॉजिटिव वैल्यू, आ पेयर ऑफ मैट्रिक्स के पिछों, सॉरी पेयर ऑफ डिटर्मीनेंट के पिछों। ऑलरेडी उन्होंने डिटर्मीनेंट का साइन पाया। ठीक है जी, और उन्होंने नाल की लिखा होया, इफ इक्वल, मतलब कि क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर उन्होंने दोनों आप डिटर्मीनेंट्स नूं इक्वल रखिए, मेरे कोल एक्स की कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वो केड़ी होएगी। ठीक है जी, ਜਾਂ फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी नहीं आएगी, चेक करते हैं। फर्स्टली गिवन कि अपने को 2 डिटर्मीनेंट्स कि 2x 3 5x। हुण इत्थे कॉमा लाया, बट उन्हें की क्या इक्वल, जो आप इन्हों इक्वल रख दें। तो दूसरा कि 16 3 5 2, 2 डिटर्मीनेंट्स इक्वल रखते। ठीक है जी, 2 डिटर्मीनेंट्स इक्वल रखते हैं। हुण इन्हां दा डिटर्मीनेंट सॉल्व आउट करने का तरीका की आ, डायगनल्स। तो यदा फर्स्ट डायगनल क्या है ना, 2x × x, फिर साइन आ जाना माइनस का, फिर 5 × 3, फिर इज इक्वल टू द साइन 16 नूं 2 दे नाल मल्टीप्लाई, फिर -5 नूं 3 दे नाल मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये चीज़ आ रही है। फिर की बन गया 2x² -15 इज इक्वल टू 32 -15। ठीक है जी, हुण 15 15 बोथ साइड आ। ठीक है, ਜਾਂ फिर तुसीं की कर सकते हो कि कॉन्स्टेंट टर्म सारियां एक साइड ते, वेरिएबल एक साइड ते, 2x² एज इट इज़ 32 -15 एज इट इज़। हुण जिहड़ा -15 दूसरी साइड जाके की हो गया पॉजिटिव दा 15, नैगेटिव पॉजिटिव कैंसल, की हो गया 2x² इज़ इक्वल टू 32। हुण जिहड़ा 2x² दे नाल मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके की हो जाना उन्हें डिवाइड। ठीक है जी, डिवाइड करने तो बाद आंसर कितना आ जाना मेरा 16। ठीक है जी, 2 के टेबल पे गए तो फिर क्या गया x² इज इक्वल टू 16। हुण अपने को x की वैल्यू चाहिए आ, उन्होंने x की बोलिया है, x² की नहीं बोलिया। तो यदा मतलब कि जी मेरी स्केयरिंग है दूसरी साइड जाके किस कन्वर्ट हो जानी है, प्लस माइनस रूट के अंदर। ठीक है जी, हुण 16 का रूट कितना हुंदा आ 4। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो मेरे को 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक्स ने एक +4 एक -4, बट उन्हें की क्या सीगा, मेक अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो की है ना पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स
इज़ कितनी आ रही है पॉजिटिव वैल्यू 4। उन्होंने गल की पॉजिटिव वैल्यू की कीती सी, आप दोनों डिटर्मिनेंट्स नूं इक्वल रखिया, ठीक है जी। फिर दोनों के डायगनल मैथड अपलाई किया, ठीक है। फिर सॉल्व आउट किया, वेरीएबल कॉन्सटेंट एक साइड ते जो फिर एक्स के नाल सी वो दूसरी साइड चले जाऊगा। फिर आप सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्केलिंग रूट च कन्वर्ट हो जाएगी और वो आप एक पॉजिटिव आंसर फाइंड कर लाँगे, ठीक है जी। तो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ गई 4। नैक्सट देखो, इफ डिटर्मिनेंट ए गिवन आ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दैन फॉर एनी नैचुरल नंबर एन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट DET मतलब डिटर्मिनेंट ए दी पावर एन, ठीक है जी। एन की है मेरे को कोई भी नैचुरल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने को गिवन किया ए मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर गल की हो रही आ ओदी पावर दी, मतलब कि ओदी पावर आ कोई भी ए दी पावर एन मतलब कोई भी नैचुरल नंबर होएगा, ठीक है। तो वाली मैट्रिक्स किदा आ जाऊगी सेम वही कॉस थीटा साइन सॉरी मतलब नाल उहदे की लग जाना एन, बिकॉज एन लग गया ना, तो ये नाल की लग जाना एन थीटा। एन की आ कोई भी अपना नैचुरल नंबर, ठीक है जी, कॉस एन थीटा। वही मैट्रिक्स आ गई बट नाल की लग गया मेरे को एन लग गया, ठीक है जी। हुण ए तो मैट्रिक्स आ, हुण ए दे नाल की कह रहा उन्हें मैट्रिक्स दे नाल की बोलता उन्हें डिटर्मिनेंट, तो फिर की आ जाना डिटर्मिनेंट ए एन, ठीक है जी। हुण इहदे नाल तुसीं कहोगे कि आपां आ वाली चीज़ ब्रैकेट आ वाली यूज़ की आ, बट ब्रैकेट मैं आ यूज़ की बट डिटर्मिनेंट लिखता, दैट मीनस मेरे को जी आ सारी मैट्रिक्स आ इन्हें किस कन्वर्ट हो जाना इन्हां विच ही, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर ही वो लिखनी आ, तो की हो जाना माइनस साइन थीटा इंटू कॉस सॉरी एन थीटा, एन भूल गया एन थीटा, ठीक है जी। हुण इनू सॉल्व आउट किस तरह करना है वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ए मैट्रिक्स सी, उन्हें की कहा कि ए एन भी देखनी है, ठीक है। एन की कोई भी मेरा नैचुरल नंबर, तो नाल अपने को फिर थीटा दे नाल की आ गया एन आ गई। जो डिटर्मिनेंट की गल की उन्हें डिटर्मिनेंट के नाल आ मैट्रिक्स देती, डिटर्मिनेंट का मतलब कि वो साइड्स से अपने को आ वाले साइंस लग जाने हैं, ठीक है। हुण फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व आउट करने का तरीका की हुंदा है डायगनल बेसिस, चलो कॉज एन थीटा इंटू कॉज एन थीटा, कॉज एन थीटा इंटू कॉज एन थीटा, नाल की आ जाना माइनस फिर साइन एन थीटा इंटू साइन एन थीटा, साइन एन थीटा, एक साइन माइनस का माइनस साइन एन थीटा, ठीक है जी। तो की होना कॉज एन थीटा इंटू कॉज एन थीटा मतलब कॉज स्केयर एन थीटा, माइनस माइनस सारी टर्म माइनस मल्टीप्लाई से ना माइनस माइनस प्लस साइन एन थीटा इंटू साइन एन थीटा, साइन स्केयर एन थीटा। हुण तुसीं सारिਆਂ ने 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिग्नोमैट्री फॉर्मूला यूज़ किया सी, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो एंगल के नाल कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होएगी उन्ना ही बन जाना, दैन आंसर क्या होगा मेरे को ਇਹਦਾ फिर 1, ठीक है जी। उन्होंने की किया सीगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए दी पावर एन, तो जो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की मेरे को कितनी आ रही है 1, ठीक है जी, समझ लगी। सैकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट वो एक्सपैंड करना आया, ठीक है। इस तरीके नाल ही तुसी सैकेंड ऑर्डर नूं एक्सपैंड करना आ, ठीक है जी। डायगनल्स नूं मल्टीप्लाई करवाना उन्होंने एलीमेंट्स नूं आपस दे विच, फिर दूसरे डायगनल नूं जदों मल्टीप्लाई करवाना आ तो मैथड दे विच माइनस का साइन यूज़ करना आ, ठीक है जी। फिर उस तो बाद किया कि उन्होंने सिंपलीफाई करो, दैन देखो तुहाडे कोल वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ जी क्लास, नैक्सट है भी डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। फर्स्टली आप सैकेंड ऑर्डर कर रखा से ना, हुण आ रहा थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर होएगा दैन डिटर्मिनेंट दे विच किस तरह एलीमेंट्स पे होणगे, 3 रोज 3 कॉलम्स होणगियां। आप लै लैंदे आ A1 एलीमेंट, B1 एलीमेंट, C1 एलीमेंट, A2 एलीमेंट, B2 एलीमेंट, C2 एलीमेंट, A3 एलीमेंट, B3 एलीमेंट, C3 एलीमेंट,
ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ 'ਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਜਾਂ ਕॉलम ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ ਚੁੱਕ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕॉलम ਚੁੱਕ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲਾ ਡਾਇਗਨਲ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਗਨਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆ प्लस माइनस प्लस, मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस थर्ड एलिमेंट प्लस, देन माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी, लास्ट पे प्लस माइनस प्लस। देखो शुरू कितना होना, प्लस तो फिर माइनस गया, फिर प्लस गया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, ये तो हो गया रो वाइज। जे तुम कॉलम वाइज भी देखो, वो भी स्टार्ट कितों होंदा, प्लस तो ही, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, ये मैथड आ। हुण आपां इन्हां नूं तुहानूं दसदे हां कि होऊगा किस तरह। एक्सपैंड करके देखो, 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट देख ली, ठीक है, तुहानूं दसदा कि ये वाले साइंस ध्यान रखने आ। ठीक है जी, हुण देखो जे मैं एक्सपैंड बाय रो दे नाल करना, हुण रो तो 3 है ये फस्ट सैकेंड थर्ड। हुण तुसीं कोई भी रो चुक लो, मैं रो 1 दे नाल एक्सपैंड करन लगी हाँ, मतलब R1 दे नाल। ठीक है, रो 1 मतलब R1 दे नाल एक्सपैंड करन लगी हाँ। हुण जदों तुसीं R1 दे नाल एक्सपैंड करना है तो मेरे कोल फस्ट एलीमेंट किहड़ा आ रहा, A1 आ रहा रो दे विच। देखो रो दे विच फस्ट एलीमेंट की आ रहा मेरा A1, और उन्हें की बोलिया कि पहले तो अगे साइन किहड़ा लगना है, प्लस दा। ठीक है, हुण ये एक्सपैंड किस तरह होएगा, तो की ध्यान रखना, देखो जदों भी तुसी रो जां कॉलम नूं एक्सपैंड करना है ना, फिर तुसी उहदे विच डिटर्मिनेंट सॉल्व आउट करना, तो उहनूं किस तरह रखना है। फस्ट A1 एलीमेंट चुक लिया, हुण जिहड़ी A1 आ उहदी सारी रो नूं कवर कर दो। ठीक है, उहदे सारे कॉलम नूं भी कवर कर दो। हुण देखो तुहाडे कोल सिर्फ बचिया की डिटर्मिनेंट 'च तुहानूं दिख की रहा है, B2 C2 B3 C3। तो आ वाले एलीमेंट्स नूं आपां इत्थे डिटर्मिनेंट 'च लिख देना, B2 C2 B3 C3। चलो एक कंप्लीट की मैं डिटर्मिनेंट, एक कंप्लीट कर ली। मतलब की आ कि जो तुसी फस्ट रो का एलीमेंट चकना ना, वो सारी रो एंड कॉलम कवर कर लेनी, फिर जो बचना तुसी उन्होंने लिख देना। ठीक है, सैकेंड की आ रहा, फिर रो का सैकेंड एलीमेंट की हो गया B1, तो इतने की रखन लगी जी मैं B1। ठीक है, बट फिर हुण आपां साइंस भी देखने हैं, साइंस से की लगना सैकेंड साइंस माइनस। ठीक है, हुण मैं B1 चुक्या आ, यदा मतलब की आ कि मैं फस्ट रो मतलब V1 कि आ रहा है फस्ट रो के अंदर। ठीक है जी, दैन फिर B वाली ही मैं कॉलम भी कवर कर देनी है, तो कॉलम भी कवर कर दो। हुण तुहानूं की दिख रहा आ, आह दो दिख रहे आ, इधर एलीमेंट दो, इधर एलीमेंट दो, किहड़े आ A2 C2 A3 C3। तो इत्थे मैं डिटर्मिनेंट का साइन पा के लिख दूँगी A2 C2 A3 C3, ये हो गया। दैन फिर हुण आ जाओ रो का थर्ड एलीमेंट किहड़ा आ C1, तो इत्थे मैं इत्थे लिख दूँने आ C1, बट C1 के अगे साइन किहड़ा है जी, प्लस दा। ठीक है, फिर ये अगे डिटर्मिनेंट पा दो। हुण मैं आ साइन चुक्या, मतलब क्या सारी रो कवर हो जानी है C1 वाली, दैन C1 वाली कॉलम कवर हो कर दो। ठीक है, फिर बच के जाना मेरे तो सिर्फ A2 B2 A3 B3, तो इत्थे क्या है A2 B2 A3 B3। जी थर्ड रो आ ਜਾਂ फिर सॉरी थर्ड ऑर्डर आ ਉਹ एक्सपैंड इस तरह किया जाता है, किसी भी रो ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ फिर किसी भी कॉलम ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ उस रो का एलीमेंट ਚੱਕੀ जाना, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ साइन देखी जाने आ। ठीक आ, फिर उस रो ਨੂੰ पूरी ਨੂੰ और उस कॉलम ਨੂੰ कवर कर देना, फिर जो बचना तुसीं ਉਹਨੂੰ लिखना। फिर जो सैकेंड ते जाना, फिर उस रो ਨੂੰ और उस कॉलम ਨੂੰ कवर कर देना, फिर जो बचना वो लिखना। थर्ड एलीमेंट के नाल की करना है,
जो तुसी थर्ड एलीमेंट चुकना है फिर उहदी सारी रो और कॉलम कवर कर देनी है, जो एलीमेंट्स बचे तुसी वो लिखने हैं, ठीक है। बाकी थानू डिटर्मीनेंट फिर करना आंदा ही है सॉल्व आउट किद्दां, A1 तो एज इट इज़, ठीक है जी। डिटर्मीनेंट सॉल्व आउट करना है, जो डिटर्मीनेंट सॉल्व आउट करना फिर आप आवली ब्रैकेट हटा देने, ठीक है। फिर तुसी आवली यूज़ कर लो, ठीक है जी। आवली ब्रैकेट यूज़ कर लवांगे, फिर की आ जाना है बी डायगनल सॉल्व कर लो, सैकेंड ऑर्डर च लैन आप इनू डायगनल सॉल्व आउट कर लो, फिर माइनस B3C2, फिर आ वाला माइनस B1, ठीक है जी। फिर ये डायगनल सॉल्व आउट कर लो कि जाना A2C3 माइनस A3C2 अगेन प्लस C1 एज इट इज़, दैन फिर A2B3 माइनस A3B2, ठीक है जी। इन्हों सॉल्व आउट करने तो बाद जो भी तुहाडा आंसर आऊगा वो A1 दे नाल मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आऊगा माइनस B1 दे नाल, जो भी आंसर आऊगा C1 दे नाल मल्टीप्लाई करने तो बाद जोड़ा भी तुहाडा सिंगल आंसर आ जाऊगा वो तुहाडे उस डिटर्मीनेंट का आंसर आ जाना। बट यह आ कि जी थर्ड ऑर्डर की डिटर्मीनेंट आ उन्होंने एक्सपैंड इस तरह किया जाता है, ठीक है। जो सैकेंड ऑर्डर आ जानी है फिर एज इट इज़ डायगनल के थ्रू सॉल्व आउट करांगे, ठीक है। चलो थोड़ा होर सिंपलीफाई करते हैं, इनू आप डायरैक्ट सम के नाल अप्लाई करके सॉल्व आउट करते हैं, फिर थानू जल्दी ही समझ आएगा, ठीक है जी। फर्स्ट हम देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, वेयर डेल्टा अपन गिवन है, डेल्टा डिटर्मिनेंट की गिवन है 6 माइनस 3 2 2 माइनस 1 2 माइनस 10 5 2। फर्स्टली अपन गिवन किया मेरे को डेल्टा गिवन ऑलरेडी, डेल्टा कि गिवन है डिटर्मिनेंट दे, ठीक है जी। दैन उन्हें की क्या फिर मैनू कहते डेल्टा की वैल्यू फाइंड करो, डेल्टा इस डिटर्मिनेंट के इक्वल दिता हुआ है और कहते हैं कि डेल्टा की वैल्यू फाइंड करो। तो पता ही है मैथड हम 3 नू एक्सपैंड करने का की आ, तुसी किसी भी तरह एक्सपैंड कर दो, रो नाल कॉलम नाल, जां फिर हुण आपां की करन लगे इहदे विच एक्सपैंड लिखना भी है जिहदे नाल भी तुसी करोगे रो ना जो कॉलम नाल, एक्सपैंड बाय रो, किहड़ी रो ना, रो 1 रो 2 रो 3 रो 1 दे नाल करन लगे आपां, ठीक है जी। तो रो 1 दे नाल एक्सपैंड करन लगे मतलब मेरे को 6 बार आने लगा, 6 बार आ गया, पॉजिटिव का ही साइन लगना। हुण 6 वाली लाइन नू और उहदी रो कॉलम नू कवर कर दो, तो की आ गया मेरे को -1 2 5 2। फिर मैं करन लगी 3 दे नाल सैकेंड एलीमेंट, बट उन्होंने अपन की बोलिया सी इत्थे प्लस लगना इत्थे माइनस लगना, आ वाला माइनस तो एलीमेंट का है पर तुसी अपने वाला मैथड वाला माइनस लगाना ही लगाना है। तो इनू भी कवर कर दो, इनू भी कवर कर दो, कि बच गया 2 2 माइनस 10 2 2 2 माइनस 10 2। फिर प्लस का साइन आ जाना है, फिर की लगना है 2। हुण जो 2 वाली सारी रो और कॉलम कवर कर दो, बच की गया मेरे को जी 2 -1 -10 5। देखो पहले दे अगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, हुण इत्थे माइनस आ वो एलीमेंट्स का माइनस आ, बट अपना मैथड वाला माइनस अलग लगना ही लगना। हुण देखो की हो गया जी 6 सॉल्व आउट कर दो, -1 × 2 -2, फिर मैथड वाला माइनस, डायगनल मल्टीप्लाई करो 5 डायगनल के एलीमेंट्स 5 × 2 10, माइनस माइनस प्लस का 3 2 × 2 4। हुण मैथड वाला माइनस तो लगना ही लगना सी, नाल आ वाला माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस 10 × 2 20 प्लस द 2 नू 5 नाल मल्टीप्लाई की 10। हुण मैथड वाला माइनस तो लग गया, हुण इधर भी 2 माइनस, आ वाले माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस, तो आ वाले फिर प्लस नू जो थर्ड वाले ना करांगे की आ जाना प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। 10 नू 1 नाल मल्टीप्लाई की 10, ठीक है जी। अगर किसी बच्चे को आ वाली चीज़ समझ नहीं लगी कि आ वाला कॉन्सैप्ट की बोलिया, तो देखो इत्थे रफ थानू करन लगी हाँ सॉल्व आउट, ठीक है जी। हुण देखो 5 नू 2 ना तो मैं मल्टीप्लाई कर ही देना, फॉर्मूले का मैथड माइनस लग जाना, ठीक है जी। फिर -10 एलीमेंट टू मल्टीप्लाई कराना -1 दे नाल। हुण देखो आ की बन गया 10, आ वाला माइनस एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 10 × 1 10 बन गया 10 - 10, ठीक है जी। 3 सी 3 माइनस सी
माइनस माइनस प्लस और फिर जो वाला प्लस बन जाना टोटली प्लस नू माइनस ना करेंगे प्लस माइनस माइनस ठीक है जी। फिर माइनस द 10 आ जाऊगा आ माइनस से आया प्लस द 10 आ प्लस माइनस माइनस द 10 ठीक है जी। चलो सॉल्व आउट कर दो कितना हो गया 6 -2 -10 -12 प्लस 3 20 प्लस 4 24 प्लस 2 10 -10 0 तो की बन गया मेरे को 6 -12 -72 प्लस 24 × 3 प्लस 72 प्लस 0 × 2 0 प्लस 10 0 ठीक है जी। तो -72 प्लस 72 आंसर इज़ 0 मेरे को डेल्टा का आंसर कितना आ गया 0 उन्होंने यही बोले सी फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा आंसर कितना आ गया मेरे को जी 0 ठीक है जी। मेन बस इस तो ही कि तुम इतों ध्यान एक्सपेंड करना फिर उन्होंने डायगोनल्स के एलीमेंट्स को मल्टीप्लाई करना फिर तो सिंपलीफाई आ वही प्लस माइनस सबट्रैक्शन यूज़ करके ठीक है जी। नैक्सट देखो प्रूव दैट द डिटर्मीनेंट अपन डिटर्मीनेंट गिवन आ इनू प्रूव करना है ठीक है जी। प्रूव दैट द डिटर्मीनेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा डिटर्मीनेंट अपन गिवन आ ठीक है जी। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इतने प्रूव करके दिखानी आ डिटर्मीनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिटर्मीनेंट नू आपां थीटा सॉरी डेल्टा मन लेंगे डेल्टा कि इक्वल आ एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स ठीक है जी। हुण मैथड की एक्सपैंड करना एक्सपैंड बाय रो 1 किसी भी चीज़ ने एक्सपैंड कर सकते हो रो नाल कॉलम नाल जो भी थानू ईजी लगे ठीक है जी। फर्स्ट रो ना सैकेंड रो ना थर्ड रो ना या फिर फर्स्ट कॉलम ना सैकेंड कॉलम ना थर्ड कॉलम ना ठीक है जी। चलो रो 1 ने एक्सपैंड करन लगे हैं तो मैथड की आ एक्स रखी बार प्लस लग जाना वो अगे साइन हुण आ एक्स वाली सारी लाइन कवर कर दो बच गया मेरे को -x 1 x फिर आ जाना साइन थीटा सैकेंड एलीमेंट वो अगे की लग जाना माइनस वो वाली सारी रो एंड कॉलम कवर कर दो फिर की बच गया मेरे को माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x लास्ट आ गया मेरे को कॉस थीटा थर्ड एलीमेंट वो अगे की लग जाना प्लस वो वाली सारी रो कॉलम कवर कर दो बच गया मेरे को माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1 आ वाली बच गई चीज़ हुण किया इन्हों के डायगोनल्स के एलीमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दो आ वाला एक्स एज इट इज़ तो आके होना माइनस एक्स इंटू एक्स फिर मैथड वाला माइनस ठीक है जी। वो किया जाना नाल 1 फिर किया गया माइनस 1 × 1 1 ही आ जाना ना माइनस साइन थीटा इंटू एक्स तो की बन गया है माइनस एक्स साइन थीटा क्योंकि नाल माइनस मल्टीप्लाई हो रहा फिर मैथड वाला माइनस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा फिर प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ ठीक है जी। तो क्या है माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हुण मैथड वाला माइनस तो आ वाला माइनस 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 प्लस एक्स कॉस थीटा ठीक है जी। तो आगे हो गया एक्स एज इट इज़ माइनस एक्स इंटू पॉजिटिव एक्स जो भी है एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर -1 माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा सिंपलीफाई करते तो तक हुण इन्हों आपस आ जो बार है इन्हों ब्रैकेट के नाल मल्टीप्लाई करवा दो एलीमेंट्स होंगे एक्स नू माइनस एक्स स्क्वेयर ना मल्टीप्लाई कराऊँ की हो गया एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू 1 एक्स माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा माइनस माइनस प्लस की होना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस प्लस और माइनस है इतने भी प्लस माइनस इतने भी किया गया मेरे को माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर प्लस 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 एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है जी। हुण प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसल। इधर क्या गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वेयर थीटा बच के गया प्लस एक्स कॉस स्क्वेयर थीटा, यही टर्म बची। ठीक है जी। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, हुण इधर भी एक्स है इधर भी एक्स आ, प्लस एक्स कॉमन कढ़ ली, अंदर की बच गया सिर्फ इधरों इन्होंने दोनों चो एक्स कॉमन कढ़ी है क्योंकि माइनस वाली टर्म अलग लिखी आ। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। हुण आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा किहदे कोल हुंदा आ 1 दे, तो एक्स नाल क्या आ गया 1, तो की हो गया माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़ माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 एक्स। ठीक है जी। तो की हो गया नैगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसल, मेरे को आंसर की आ गया माइनस एक्स क्यूब आ गया विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। उन्होंने यही बोलिया सीगा ना कि तुसी इस चीज़ नूं प्रूव करो, इस डिटर्मीनेंट नूं की होवे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होवे। फर्स्टली मैंने डिटर्मीनेंट दी सी, उन्होंने आपां लैट कर लिया सी डेल्टा, फिर उन्होंने एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करन तो बाद जदों उहदे डायगनल्स वाली 2 ऑर्डर बन गई, डायगनल्स के एलीमेंट्स नूं आपस दे विच मल्टीप्लाई किया। ठीक है। सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने तो बाद आंसर की आ गया माइनस एक्स क्यू विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है जी। सम की हो गया अपना प्रूव। समझ लगी भाई किस तरह करना। हुण थर्ड ऑर्डर भी देखो नेक्स्ट, इवैल्यूएट डेल्टा गिवन आ, डिटर्मीनेंट गिवन आ, ऑल्सो प्रूव दैट डेल्टा है जोड़ा कि लाई करता पाया 2 and 4 के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मेरे को डिटर्मीनेंट आ उन्होंने एक्सपैंड करना, तो थानू आंदा रो 1 के नाल एक्सपैंड कर दो 1 माइनस साइन थीटा प्लस द 1, एक्सपैंड करके मेरे को इन्ना आंसर आ गया। ठीक है जी। जो एक्सपैंड करूँगी आ देखो की आ रहा है फिर मेरे को 2 + 2 साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है। ये 2 कॉमन कर लो, आंसर क्या है ना 1 + साइन स्क्वेयर थीटा इंटू 2। ठीक है जी। या फिर थोड़ा और सिंपलीफाई ब्रैकेट तो बाहर करके लिख दो कि है ना प्लस साइन स्क्वेयर थीटा आ तो 0 0 गया, फिर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 1। ठीक है। प्लस 1 प्लस द 2 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ये अगे भी 1 ला दो 1, फिर की हो जाना 2 साइन स्क्वेयर थीटा। इन्होंने दोनों चो 2 कॉमन कट लिया, अंदर की बच गया 1 + साइन स्क्वेयर थीटा। हुण गल हो रही सी इस चीज़ की। ठीक है जी। तो जोड़ा फिर मेरा साइन थीटा आ वो कि डोमेन च लाई करता -1 तो लैके 1 के अंदर, -1 तो लैके 1 के अंदर। ठीक है जी। फिर उसकी जी स्केयरिंग आ फिर वो की इधरली साइड आ जाना अपने को 0। ठीक है। जो देखो मेरे को सिंगल माइनस साइन थीटा आ वो लाइक करता पाया -1 to 1 दे विच, फिर जो पॉजिटिव साइन स्क्वेयर आ जाना तो लैस की हो जाना 0 तो नैगेटिव तो किच आ जाना थोड़ा पॉजिटिव। ठीक है जी। दैन उस तो बाद की आ फिर अपने को आ वाली सारी टर्म आ गई। हुण इत्थे स्केयरिंग तक आ गया काम, स्केयरिंग तक आ गया। ठीक है। फिर हम दोनों साइड से इतने देखो नाल की आ गया साइन स्क्वेयर, पहले साइन थीटा सी, फिर आप तो की बनाया साइन स्क्वेयर थीटा बनाया। साइन स्क्वेयर थीटा बनाने तो बाद फिर आप की रखा नाल वो की है जी प्लस द 1, डोमेन तो कम उदी तो शुरू करके फिर आप की करता इच +1 रखा, फिर ये साइड पर भी 1 द ++ 1 प्लस रखता। ठीक है जी। 1 + 1 आ तो 1 + 0 1 हो गया, आवली टर्म एज इट इज़ आ गई 1 + 1 ये 2 बन गया। ठीक है। फिर इतने सारी टर्म के नाल देखो नाल की हो रहा 2 दे मल्टीप्लाई हो रहा, तो आप सारी टर्म के नाल इधर भी 2 मल्टीप्लाई करवाता, ये भी 2 मल्टीप्लाई करवाता, इधर भी 2 मल्टीप्लाई करवाता। 1 2 ना मल्टीप्लाई किया 2 2 2 ना मल्टीप्लाई किया 4। हुण आ वाली चीज़ तो वापस सारी आही बन गई, और आ वाली चीज़ किहदा आंसर आया सी डेल्टा का, तो ये जगह पर आप की रखता डेल्टा, और उन्हें प्रूव करने भी की किया सी ऑल्सो प्रूव दैट। ठीक है। वो डोमेन तो शुरू हो के ठीक है। दैन फिर तुसी उन्होंने हौली हौली इस तरह लैके जाना। दो चीज़ चाहिए साइन स्क्वेयर थीटा, पहले साइन थीटा सी वो डोमेन, फिर आप साइन स्क्वेयर थीटा लैके गए क्योंकि वो पॉजिटिव च आनी चाहिए, स्केयरिंग कभी भी तुहानूं पता नैगेटिव तो नहीं आऊगी। ठीक है जी। फिर कि आप इतने 0 रखता, उस तो बाद की किया आप देखा कि साइन स्क्वेयर थीटा आ गया, वो की सी 1, फिर आप इतने 1 ऐड कराया, फिर साइड पर भी 1 1 ऐड करवाता। उस तो बाद आप देखा कि नाल उहदे की हो रहा 2 मल्टीप्लाई, फिर आप सारी टर्म्स के नाल 2 मल्टीप्लाई करवाता। उस तो बाद देखा कि आप प्रॉपर आह वाली चीज़ बन गई, और यदा आंसर की सी डेल्टा, तो इनू इतने डेल्टा पुट करता और आ वाली सेम चीज़ बनाती। ठीक है जी।
ਹੁਣ ਸੇਮ ਨੈਕਸਟ ਆ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ 2A ਔਰ 4A ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 3A ਦੈਨ ਫਿਰ 27A ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। ਹੁਣ ਕੀ ਆ 3A ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। 27 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 27 ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 20 ਮੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੇਮ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਫ brackets dot denotes the greatest integer less than or equal to the real number under considerations and x lie ਕਰਦੀ ਹੈ -1 to 0, y lie ਕਰਦੀ ਹੈ 0 1, then z lie ਕਰਦੀ ਹੈ 1 2, then find the value of the determinant। determinant given ਆ, determinant given ਆ, then ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ considerations ਵੀ given ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਈਆਂ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 0 1 2 -1 -2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ -1 0 1 2 ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਐਕਸ ਦੀ, ਐਕਸ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। ਮਤਲਬ ਜੇ 0 ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦਾ -1। ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ 0 ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, 0 ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 0, ਮਤਲਬ ਫਿਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ z, ਹੁਣ ਦੇਖੋ z ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 2, ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 2, z ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ 1। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਆ z ਦੀ 1। ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ x ਦੀ -1, y ਦੀ 0, z ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ -1 + 1 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 0, y ਦਾ ਆਂਸਰ 0 ਹੀ ਆ, z ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 1, ਫਿਰ x ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ -1, y ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ y + 1 ਮਤਲਬ 0 + 1 1, ਫਿਰ z ਦਾ ਆਂਸਰ 1, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ -1, y ਦਾ 0। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀ 1 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ 0 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ 0, ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 0, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਿਆ ਥਰਡ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ -1 0 ਔਰ 1 ਆਈ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਔਰ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਮਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।